کو دیکھ کر پہلے ہم روتے ہیں، ہم بعد میں مرکز کی طرف دیکھیں، بعد میں ہم نیشنل لیڈرز کی طرف دیکھیں. ہمارے صوبے میں لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے. اربوں روپیہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کیا ہے. تو آپ نے اس کے نتیجے میں اتنے حد تک نقصانات دیکھے کہ 3 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہوئے. ابھی تک حکومت کی طرف سے جو ہے، کوئی بھی حکومت ہو، اس کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ صرف فضائی دوروں سے یا اسلام آباد میں بیٹھ کر کے بہت فنڈ اکٹھے کیے ہیں اور بہت سارا کام کیا ہے، اس سے گراؤنڈ ریئلٹی بدل نہیں جاتی ہے. صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. صرف خیمے بانٹنا یا راشن بانٹنے سے ان لوگوں کی مسائل کا حل نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس آف بلوچستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے بہت ہی سینئر رہنما علاؤالدین مری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میڈم. جی مری صاحب، سیلاب کی جو صورتحال تھی وہ بلوچستان کی ہم لوگوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے، لیکن درمیان میں اسی صورتحال کی وجہ سے ایک لمبا بریک بھی آیا کہ ہم جو ہے اپنے ویلاگس کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکے. تو اب کیونکہ صورتحال کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ آج ہم یہ ویلاگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیے گا کہ اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ کون سے ایشوز ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. کافی دنوں بعد ہم نے دوبارہ اپنا ویلاگ کا سلسلہ شروع کیا ہے آپ کے ساتھ. آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی ہم نے جن دنوں میں یہ ویلاگ سٹارٹ کرنا شروع کیا تھا، بلوچستان کی سیلابی صورتحال بالکل انیشیل اسٹیج پہ تھی. بالکل یہ جولائی کا اینڈ تھا اور اگست کا شروع تھا جب ہم نے یہ ویلاگس کرنے شروع کیے. اس وقت ہم نے حکومت کی توجہ دلانی چاہیے ان سارے ایشوز کے اوپر جو خدشات ہمیں تھے، جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پریڈکشنز ہو رہی تھی، فورکاسٹ ہو رہے تھے، اور جو ہمارے صوبے کی صورتحال تھی اس کے بارے میں ہم نے وقتاً فوقتاً حکام بالا کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، صوبائی حکومت کو جگانے کی کوشش کی. لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ کی طرح ہم بات کرتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہزاروں لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیا جاتا، نہ حکام بالا اس طریقے سے عمل کرتے ہیں. تو آپ نے اس کے نتیجے میں اتنے حد تک نقصانات دیکھے کہ 3 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، کھڑی فصلیں لوگوں کی تباہ ہوئی، لوگوں کے گھر منہدم ہوئے. کتنا جانی نقصان ہوا، جتنا مالی نقصان ہوا وہ سارا ہمارے سامنے ہے. آج دوبارہ ہم نے اس ویلاگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج میں آپ کو اپنے اس پروگرام کے توسط سے پھر آپ کو وارن کرنے جا رہا ہوں کہ اب یہ دسمبر کا مہینہ آنے والا ہے، نومبر سٹارٹ ہو گیا ہے، نومبر کا پہلا ہفتہ ہے. بلوچستان میں فورکاسٹ کے مطابق پہلی بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جہاں ان یوزول بارشیں ہوئی، جہاں گرمی زیادہ پڑی، جہاں پانی زیادہ آیا، اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ نارمل سردیوں سے زیادہ سردی پڑے گی. تو وہ لوگ جو ابھی تک نہ ری ایبلیٹیشن کے فیس پہ گئے ہیں، نہ ان کے لیے گھر بنائے گئے ہیں، نہ ان کو صرف اگر کچھ نہ کچھ ان کو مدد کی گئی ہے ٹینٹس کی صورت میں، وہ بھی مجھے صوبائی حکومتوں اور فیڈرل کی طرف سے بہت کم دکھی ہے. اس میں ریڈ کریسنٹ پاکستان نے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا، جس کے ایک نیولی اپائنٹڈ چیئرمین ابھی اپائنٹ ہو کے آئے ہوئے تھے. ان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں اور سندھ میں خصوصاً کافی کام ہوا. اس کے علاوہ ان لوگوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ کریسنٹ نے وہاں پہ کام کیا، آپ کو حکومتیں نظر نہیں آئیں، حالانکہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ وفاقی حکومت ہو، میاں شہباز شریف ہوں یا ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے بہت زیادہ کلیم کیا کہ بہت زیادہ ہمیں فنڈز بھی آ رہے ہیں، لوگ مدد کر رہے ہیں. انہوں نے فنڈز کا اعلان بھی کیا اور خود بھی اعلان کیا کہ جی ہر طرح سے سیلاب زدگان کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی. دوسری طرف ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا، جس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ فنڈز اکٹھا کیا، اور وہ بہت کلیم کرتے ہیں، اربوں روپیہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کیا ہے. تو اگر یہ پیسہ اکٹھا ہوا تھا تو کس بات کا انتظار ہے؟ ابھی تک حکومت کی طرف سے جو ہے، کوئی بھی حکومت ہو، اس کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے میڈم، جہاں تک آپ نے میں بڑے ادب کے ساتھ ان سارے لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف فضائی دوروں سے یا اسلام آباد میں بیٹھ کر کے آپ یہ منہ کے زبانی جمع خرچ پہ کہہ کر کے کہ ہم نے بہت فنڈ اکٹھے کیے ہیں اور بہت سارا کام کیا ہے، اس سے گراؤنڈ ریئلٹی بدل نہیں جاتی ہے. آج بھی بلوچستان کے لوگ اسی قسم پرسی کا شکار ہیں، اسی طرح بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. صرف خیمے بانٹنا یا راشن بانٹنے سے ان لوگوں کی مسائل کا حل نہیں ہے. آج مجھے بتائیں، اس سردیوں میں اب ان کو سردی لگے گی، گیس کی شارٹیج آپ کے سامنے ہمارے ملک میں ہے، جہاں پہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ابھی تک گیس کی اویلیبلٹی گیس کی تو لوڈ شیڈنگ شروع بھی ہو گئی ہے.
जी हाँ, बिल्कुल गैर की लोड शेडिंग चूँकि कमी है, पूरे मुल्क को हमारे इसकी कमी का सामना है, तो इसके लिए आप मुझे बताएँ कि अभी तक हम रिहैबिलिटेशन के फ़ेज़ में दाखिल ही नहीं हुए हैं। आपने बलूचिस्तान में या सिंध में अभी तक कितने लोगों को घर बना के दिए हैं? या उनको स्टार्ट किया हुआ है? अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मुल्क में अदम इस्तेहकाम सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी मामलात के ऊपर ही इसको देखा जाता है। ये जो कुदरती आफ़ात हैं, इनकी जो डैमेजेज़ हैं, इनको तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी में या जो है ना इमरजेंसी में देखा ही नहीं जाता है। आज अगर आप इस पूरी नेशनल मीडिया को देखें, बल्कि इंटरनेशनल ने भी हमें कवर किया हुआ है, हम किस चीज़ों पे लगे हुए हैं? हम धरनों पे लगे हुए हैं, हम जो है ना लॉन्ग मार्चेज़ पे लगे हुए हैं। आपकी ये सारी बात जो है ना वो बिल्कुल जायज़ है और ये 100% मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि चलें मीडिया और जो लार्जर स्केल में हम देख लें कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने में या धरनों और जलसे जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगी हुई हैं, लेकिन आपके अपने जो बलूचिस्तान के रहनुमा हैं, आपके जो अपने MPs हैं, जो आपके अपने MNAs हैं, वहाँ से कई वज़ीर भी हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं? वो क्या कर रहे हैं? हमें तो रोना सबसे पहले अपने घर से ही आता है ना, कि हम अपने घर को देखकर पहले हम रोते हैं। हम बाद में मरकज की तरफ देखें, बाद में हम नेशनल लीडर्स की तरफ देखें। हमारे सूबे में लीडरशिप का बड़ा फुकदान है। हमारे सूबे में गवर्नमेंट के पास कोई विल मौजूद नहीं है। जब उनसे पूछने जाएं, जब उनसे बात करने जाएं, वो अपने महदूद वसाइल का रोना शुरू कर देते हैं। अब इस सूरत में मैं आपको बता सकता हूं कि अगर वसाइल की कमी भी हो, सिर्फ विल मौजूद हो, उस विल के तहत भी इंसान बहुत सारी चीजें कर सकता है। बड़े बड़े ओहदों में हमारे बलूचिस्तान के बड़े बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। लोग, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे बलूचिस्तान हो, वहां पे आज बराजमान है, बैठे हैं। लेकिन मैं परेशान हूँ, इस 22 करोड़ का फिगर हम हर वक्त सुनते हैं कि जी 22 करोड़ मुल्क का आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ ने ये फैसला कर दिया, हम 22 करोड़ के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज उनमें से 3 करोड़ को सैलाब ने आ घेरा हुआ है। आपने उनके साथ क्या किया है जो आप 22 करोड़ की फिगर को बार बार हमारे सामने लाकर कोट करते हैं? देखें, बिल्कुल ना फेडरल गवर्नमेंट ना सूबाई गवर्नमेंट, मैं इस दोनों को इस सैलाबी सूरत हाल में बड़ी नाकामी से दो चार देखता हूँ। और मैं बड़ा खदशे का इजहार आपके इस प्रोग्राम के जरिए कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सर्दियों की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें इन लोगों में बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने का खतरा है। उसके अलावा इनमें बहुत सारी अमवात खुदा न ख्वास्ता होने के बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं। अभी से बर्फबारियां, बारिशों के प्रेडिक्शन स्टार्ट हो गए हैं। खुदारा हुकूमतें अपने होश के नाखुन लें, अपनी सियासतों को बाद में रखें। ये सियासत इस वतन, इस मुल्क के लिए ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कर रहे हैं। जब ये लोग ही नहीं रहेंगे, जब ये लोग ही खुदा न ख्वास्ता आफतों का शिकार होंगे, तो ये सियासत किस पे करेंगे? आज मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ इतना कहता हूं कि जो लोग आज हमारे पाक फौज के ऊपर, हमारे आर्मी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये वो इदारा है जो हमें अक्रॉस द बोर्ड और बगैर किसी तफरीक के वो हमारे सूबे, हमारे मुल्क की खिदमत करता रहा है। चाहे वो सैलाब रहा हो, चाहे जलजला आ जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, कोविड आ जाए, इन्हीं की कंधों के ऊपर ये मुल्क चलता है। आपने पिछले दिनों सैलाब में देखा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल ने अपनी शहादत अपने ऑफिसर्स के साथ कबूल करके इस वतन की कौम और बलूचिस्तान की खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश किया। हम ये सारी कुर्बानियों को क्यों भूल जाते हैं? अपने 2 दिन की सियासत के लिए, अपने 2 दिन के रुतबे और कुर्सी के लिए हम अपने मुल्क को दाव पे लगा लेते हैं, अपने मुल्क के इदारों को दाव पे लगा लेते हैं। अब इस हालात में आप मुझे बताएं कि हम किन से गिला करें? हमारे सियासी हुक्मरान यही है जो आपके सामने है, जो सारा दिन एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। पहले तो ये अपने हद तक कीचड़ उछलते थे, आज ये हमारे गिरेबान तक आ गए हैं, आज ये हमारे पाक फौज के ऊपर आ गए हैं, अब आज उनको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बिल्कुल, सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है और जिसका जो है वो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो फ़ायदा उठा भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा भी सकते हैं। लेकिन चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि इस वक्त रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जिस तरह से आपने बताया कि वो ना होने के बराबर है, सिर्फ रेड क्रिसेंट वहाँ पे नज़र ज़रूर आ रही है, उसके अलावा हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। तो आपके ख्याल में और अब जिस तरह से सर्दी आ रही है, आपने बर्फ़बारी का जिक्र किया, गैस की शॉर्टेज का जिक्र किया, तो आपको क्या कोई हल समझ में आता है कि इसका क्या हल किया जा सकता है और उसके लिए तकरीबन कितने दिन का अरसा रिक्वायर्ड होगा कि लोगों को कम से कम आने वाली सर्दी में जो शुरू हो चुकी है उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सके? कोई सोल्यूशन बताइएगा प्लीज़। देखिए, जैसे हमने बारिशों की शुरू में ही कह दिया था, जब बारिशें शुरू होना ही शुरू हो गई थी, मेरे और आपके प्रोग्राम्स रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें हमने कहा था कि हुकूमतें अपने होश के नाखुन लें और इस चीज़ को आज से सीरियस लेकर के लोगों के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो उठाए जाएं। आज मैं और आप दोबारा ये कह रहे हैं कि हुकूमतें अपनी सियासत को छोड़कर अपने सूबों को उन खास इलाके
टारगेटेड इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में सर्दी पड़ती है, उनको अभी से जो है ना, चाहे वो गैस की सूरत में हो। देखें, आज क्लाइमेट चेंज का दुनिया को अगर सामना है, वो दरख्तों की कमी की वजह से है। कल इस सूबे में लोगों को जब सर्दी लगेगी तो वो जलाने के लिए इन्हीं दरख्तों का ही इस्तेमाल करेंगे ना, और तो कोई अल्टरनेट वहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से एक आला हुकाम को एक बात बावर कराना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान बड़े सीरियस, और सिंध के कुछ इलाके बड़े सीरियस तरीके से डैमेज हुए हैं। काइंडली इनके ऊपर बड़े सीरियस नोट पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी सियासतों को छोड़ के सूबों को तवज्जो दें, और सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है कि वो अब ख्वाब खरगोशों से उठें और ऐवान इक़्तिदारों से उठें। ये साल, आने वाला साल इनके लिए इलेक्शन का होगा। आपको एक बात मैं कोट करना भूल गया कि पिछले दिनों एम्बेसीज ने, मुख्तलिफ मुल्कों की एम्बेसीज ने बलूचिस्तान के हवाले से मुझसे रब्ता किया, मुझसे फीडबैक मांगा, मुझसे करंट सिचुएशन मांगी, और ये बताया कि ये बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज तो अब हर साल का मसला है, ये कोई एक साल के लिए तो नहीं आया है, ये हर साल अब इसने आना है। तो आपकी हुकूमतें क्या प्लान कर रही हैं कि इन लोगों को आने वाले दिनों में जब सैलाबें होंगी, जब इस तरह की तबाहकारियां होंगी, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने उनको बताना था कि हम धरने प्लान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लेस कर रहे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ ये अल्फाज कहूंगा कि मैं अब अपने गंदे कपड़े उनके सामने बैठ के तो नहीं धो सकता हूँ। मैं उनको यही मजबूरन कह सकता हूँ कि जी कुछ वो डैम्स की सूरत में आप करें, कुछ हमारे साथ रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ प्री फैब्रिकेटेड घर बनाकर हमें दें। इस तरह की चीजें आप अगर करके दें हमें, तो हम ये इस मसले से निकल सकते हैं। अब उनको मैं क्या बताऊं कि हमारे लोगों के अंदर, हमारे सियासतदानों के अंदर इतनी बेइज्जती आ गई है कि वो अपने इक़्तिदारों से, अपने इलेक्शनों से, इस हाल में लोग इलेक्शन मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं, लोग मर रहे हैं, लोगों को अब 2 सूबे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज रखे हैं, कुछ हिस्सा पंजाब का महफूज रहा है, कुछ KPK का महफूज है। उन 2 इलाकों के बाद ये जो पूरा पाकिस्तान है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान जो 45-46% ऑफ पाकिस्तान है, इसको आप कोई आबादी, ठीक है उसकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख है, लेकिन उसको आप इंसान नहीं समझते हैं। सिंध के लोगों को आप इंसान नहीं समझते हैं। आप इस दौरान में इलेक्शन कैसे डिमांड कर सकते हैं? आप करोड़ों अरबों रुपए अपने जलसों पे लगाते हैं। वही करोड़ों अरबों रुपए अगर आप आज सैलाब पे लगाते हैं, और ये जो लाखों लोग बकौल आपके के या ये सियासी रहनुमाओं के हमारे जलसों में आते हैं, अगर इन लोगों को आप कह दें कि वो जाकर रजाकाराना तौर पर इन लोगों की मदद करे, तो आज हमारा मुल्क, हमारा सूबा इस क्राइसिस से निकल सकता है। लेकिन विल कहाँ से लाएं? आप मुझे बताएं कि हम कैसे इन लोगों की ज़मीरों को जगाएं? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल जो है वो आपने आवाम के सामने रखा है, और इसी सवाल के साथ जो है मैं अपने इस वीलॉग का इख्तिताम करूँगी कि लोगों का जो है वो ज़मीर जगाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरान का, हमारे अशराफिया का ज़मीर जब तक नहीं जागेगा, लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। जबकि आने वाले दिनों में मसाइल जो है वो बढ़ने का अंदेशा है। गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की शॉर्टेज जो है वो हो रही है, सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगोों के पास घर नहीं है, सैलाब की वजह से बिल्कुल जो है वो तबाह हाल हुए हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमतों को चाहिए कि या तो वो उनके लिए फ़ंड्स रिलीव करें, अदरवाइज़ जो फ़ंड्स उनके लिए इकट्ठे किए गए कम से कम वही उन तक पहुंचा दें, ताकि सूरत हाल में कुछ ना कुछ बेहतरी हो सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।